Hello friends, welcome to all. In a previous lecture we study about no load current. We know that in no load current we have an two component. One is an core loss component and one is an magnetizing current component. So find out the magnetizing current, we have to find a total MMF of motor. So find out total MMF, we have to find a MMF for motor starter, rotor, rotor core, stator core and teeth MMF. So find out all the MMF, we find the total MMF AT, and with this MMF we find the no load current. So in a previous lecture we study about finding out the MMF or rotor teeth, stator teeth and MMF for air gap. Now in this lecture we find out the MMF for stator core. So first of all, for find out the MMF core, we have a formula for the MMF core, length LCS, where CS, which is a length of stator core, is equal to 1 upon 3 pi into D plus 2ds plus 2dcs upon P. Now here is a stator and some teeth here we see in the figure. So due to this teeth there are some slot. So width of slot, this width of slot we call them DSS, and the width of core is called the DCS. So DCS, which is the core of stator, depth of stator core, and DSS, which is the depth of stator slot. So length of stator core, which is equal to, so pi into total diameter, which is our periphery. Now total periphery divided by number of pole, we find a stator core length. So pi into diameter, so diameter D, which is the diameter of stator bore D. Now D plus 2dss, both side stator slot width, and DCS, which is the both side total depth of stator core. So 2dss plus 2dcs by P, and we get length of stator core. Now this length we multiply with the MMF for the 1/3 length of this stator core length. So MMF for 1/3, which is AL 1 by 3. Now AL 1 by 3, sorry, we say AT 1 by 3. So AT 1 by 3 into length CS, which is equal to total MMF AT for stator core, CS as core of stator. So find out the stator core, we find the two formula for the MMF. Now we find the MMF for rotor core, ATCR, it's called MMF for rotor core. Now find out the rotor core. We have here we see the rotor, and rotor here has some slot here there, and it's a shaft. Now this length is called the depth of rotor core, and this length is called the depth of stator slot, a rotor slot. So this is the rotor slot depth, and this is our rotor core depth. Now find out the MMF for rotor core.
ATCR is equal to AT 1/3 for CR into length of CR, length of CR, which is a rotor core length. So this length, total length of core, multiply with the 1/3 mmf is equal to mmf for the rotor core. Now find out the length of rotor core. We have an equation. A length of rotor core, which is equal to pi into d minus 2dss minus dcs upon 3p. So we find the value of length of core with the help of this equation. Then we find mmf ATCR, which is equal to AT 1/3 into length of rotor core, and we get total mmf from this equation. Now we find the total mmf. So total mmf AT60, which is equal to ATG, a length of air gap plus length of stator teeth plus length of plus mmf of rotor teeth plus mmf of stator core plus mmf of rotor core. Now total mmf we find out by this equation, and then find out magnetizing current. Magnetizing current per phase with this equation, and this equation we derived in our magnetic circuit in our 5th semester. So here we write this equation, a 0.427 P into AT60 divided by kWs into TS, where TS, which is the number of turn per phase per slot, kWs, which is a winding factor, AT60, which is a total mmf of the motor, and P is the number of pole. So with this equation we find the magnetizing current. Now we see example related to find out the magnetizing current. So now here we see some example related to find out the magnetizing current. Here we have an example. Find the magnetizing current of 415 volt 3-phase 50 Hz 4-pole induction motor using following data. A stator core diameter which is 21 cm, a stator core length which is 15 cm, effective air gap length which is 0.5 meter. The double layer stator winding is delta connected with 4 slots per pole per phase and 28 conductor per slot are there. The ampere turns for the iron paths may be taken as 45% of the air gap ampere turns. Make suitable assumption if it is necessary. So यहाँ पर हमें पता है कि इस एग्जाम्पल में हमें मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो फाइंड करना है, और मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए हमने मैग्नेटाइजिंग करंट के जो एमएमएफ है वो पहले फाइंड करना होगा, और एमएमएफ फाइंड करने के लिए हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशन जो है वो डिराइव किए मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए। अभी यहाँ पर हमें एक एजम्पशन दिया हुआ है कि जो हमारा आयरन पाथ में भी टेकन 45% ऑफ द एयर गैप एम्पीयर टर्न्स। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि अगर आयरन पार्ट्स का एमएमएफ है वो एयर गैप के एमएमएफ के 45% है, यानी अगर यहाँ पर हम एयर गैप का एमएमएफ जो है वो फाइंड कर लेते हैं तो हमें आयरन पार्ट्स का एमएमएफ जो है वो मिल जाएगा। अब आयरन पार्ट्स का एमएमएफ मिल गया, उसका मतलब क्या है कि जो हमारे मोटर है वहाँ पर हमने एमएमएफ की बात की थी, तो स्टेटर कोर का एमएमएफ, स्टेटर टीथ का एमएमएफ, रोटर कोर का एमएमएफ और रोटर टीथ का एमएमएफ, ये चारों जो एमएमएफ है वो आयरन पार्ट्स एमएमएफ है और एयर गैप एमएमएफ। तो ये पांचों का मिला के टोटल एमएमएफ हमें मिलता है।
यहाँ पर हमें आयरन पार्ट्स बोल दिया है, मतलब चारों एमएमएफ उसमें इंक्लूड हो जाएंगे और एयर गैप का एमएमएफ जो है वो हम फाइंड कर लेंगे, तो हमें टोटल एमएमएफ जो है वो मिल जाएगा। अब जो ये टोटल एमएमएफ है उससे हम मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें 415 वोल्ट यानी ईएमएफ जो है वो दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी है, 4 पोल यानी पी डी जो डायामीटर है वो दिया हुआ है, एल हमारी कोर लेंथ, एल जी जो हमारा एयर गैप लेंथ है वो, और क्यू यानी कि स्टेटर स्लॉट पर पोल पर फेज वो हमें 4 दिया हुआ है, और 28 कंडक्टर पर स्लॉट यानी कि कंडक्टर एक स्लॉट में 28 कंडक्टर है। द एम्पियर टर्न फॉर द आयरन पार्ट्स में बी टेकन एज 45% ऑफ द एयर गैप एम्पियर टर्न्स जो हमने बताया, और मेक सुटेबल एजम्पशन यानी कि इस एग्जाम्पल में अगर हमें कोई चीज़ जो है वो या कोई नंबर ऑफ पैरामीटर जो दिए नहीं होंगे उसको हम अज्यूम कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हमें पहले तो मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करना है, तो पहले मैग्नेटाइजिंग करंट का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का इक्वेशन हमने यहाँ पर ले लिया, P जो है नंबर ऑफ पोल, 80-60 यानी टोटल एमएमएफ, KWS यानी वाइंडिंग फैक्टर। तो वाइंडिंग फैक्टर जो है यहाँ पर हमें वाइंडिंग फैक्टर जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू जो है वो हम 0.955 जो है वो अज्यूम कर लेंगे। अब टर्न पर फेज जो है स्टेटर के उसकी वैल्यू भी जो है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें जो स्लॉट पर पोल पर फेज है उसकी वैल्यू दी गई है, और ऑल्सो हमारे पास कंडक्टर पर स्लॉट जो है उसकी वैल्यू है, तो उससे हम नंबर ऑफ टर्न पर फेज जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब नंबर ऑफ टर्न पर फेज मिल गया, फिर बाद में हमें 80-60 फाइंड करना होगा। तो 80-60 फाइंड करने के मतलब हमें टोटल एमएमएफ फाइंड करना है, यानी एयर गैप का एमएमएफ प्लस आयरन पाथ का एमएमएफ, ये दोनों जो है वो फाइंड करना होगा। अब एयर गैप का एमएमएफ फाइंड करने के लिए हमें पता है इक्वेशन ATG यानी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो 8 लाख BG इंटू LG इंटू KG। यहाँ पर KG जो है वो हमारा गैप कॉन्स्ट्रक्शन फैक्टर होगा, तो गैप कॉन्स्ट्रक्शन फैक्टर की वैल्यू भी यहाँ पर हमें नहीं दी गई है, तो उसकी वैल्यू जो है वो भी हम अज्यूम कर लेंगे। तो गैप कॉन्स्ट्रक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो हम अज्यूम कर लेंगे, तो हमें ATG की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ATG फाइंड करने के लिए हमें BG की वैल्यू भी नहीं दी गई है। BG यानी क्या है, हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो। अब ये फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना यानी BG60 फाइंड करना 80-60 के लिए। तो BG60 फाइंड करने के लिए हमने जब ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो स्टार्ट किया तभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, यानी BG60 इज इक्वल टू 1.36 B एवरेज। तो अगर हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी की एवरेज वैल्यू मिल जाए तो उसको 1.36 से मल्टीप्लाई करके हम BG60 फाइंड कर सकते हैं, और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम ATG फाइंड कर सकते हैं। तो पहले B एवरेज जो है वो निकालना होगा, और B एवरेज निकालना यानी उसका इक्वेशन हमें पता है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का इक्वेशन है P∅/πdl। तो P∅/πdl जो है उसमें हमारे पास D की वैल्यू जो है वो दी गई है, L भी हमारे पास है डेटा में, P भी है लेकिन फाई नहीं है। तो ये फाइल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, EMF इक्वेशन है वो लेना पड़ेगा। तो EMF इक्वेशन जो है 4.44 F इंटू φm इंटू KWS इंटू TPH। तो हम यहाँ पर जो है वो EM जो है वो दी गई है वैल्यू, फ्रीक्वेंसी दी गई है, KWS भी है हमारे पास। तो इन सब को मिला के हम φm जो है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वो φm हम जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो BAV मिलेगा, उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो B60 मिलेगा, उसको यहाँ पर लेंगे तो हमें ATG मिलेगा, ATG जो है यहाँ पर लेंगे और 45% ATG लेंगे तो ATI मिल जाएगा। ये दोनों का सम हमें टोटल MMF मिलेगा। टोटल MMF जो है वो हम नो लोड करंट के इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें नो लोड करंट मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल का ओवरव्यू हमने देखा। अब ये एग्जाम्पल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हमें नंबर ऑफ जो स्लॉट पर पोल फेज है
वो हमें वैल्यू दी गई है Q इज इक्वल टू 4 यानी स्लॉट पर पोल पर फेज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो पोल है वो कितने हैं 3 और नंबर ऑफ फेज जो है वो भी 3, सॉरी नंबर ऑफ पोल हमें 4 दिए है और फेज जो है वो 3। तो नंबर ऑफ पोल इंटू फेज इंटू 4 यानी हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा नंबर ऑफ स्लॉट होगा, नंबर ऑफ स्लॉट। तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 48। अब हमें नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट दिए हुए हैं, यानी हमारा जो कंडक्टर है वो अपॉन स्लॉट, उसकी वैल्यू जो है वो हमें 28 दी हुई है। यानी अगर हमें कंडक्टर फाइंड करना हो तो स्लॉट को हम यहाँ पर ले जाएंगे, तो कंडक्टर इंटू 28 इंटू स्लॉट। अब हमें कंडक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्लॉट की वैल्यू तो हमें निकाली थी 48, उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें 1344 जो है वो नंबर ऑफ कंडक्टर मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर। अब जो नंबर ऑफ कंडक्टर है उससे हमें नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट है, उससे हमें नंबर ऑफ टर्न पर फेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर है, अब कंडक्टर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें टर्न मिल जाएंगे। तो पहले हम 1344 जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें पर फेज वैल्यू लेनी है टर्न की, तो टर्न की पर फेज वैल्यू लेने के लिए उसे 3 से भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से भी डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 224 मिलेगी। ये जो है वो हमारे कंडक्टर डिवाइड बाई 2 यानी टर्न और डिवाइड बाई 3 यानी फेज। सो टर्न पर फेज जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 224, यानी TPH बराबर 224 जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें फ्लक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, उसके लिए EMF इक्वेशन लेंगे। सो EMF इक्वेशन यानी EPH 4.44 F kWh इंटू 5 इंटू TPH। अब यहाँ पर हमें फ्लक्स फाइंड करना है, यानी 5 इज इक्वल टू EPH अपॉन 4.44 F kWh इंटू TPH। अब EPH यानी हमारे जो EMF है वो हमें डेटा में दिया हुआ है 415 या 4.44, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। kWh जो हमने अज्यूम किया था वो 0.955 और TPH जो हमने फाइंड किया अभी 224। तो हमें फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, और फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 8.73 इंटू 10⁻³ वेबर जो है वो मिलेगी। अब जो फ्लक्स की वैल्यू जो हमें मिल गई है, उस फ्लक्स की वैल्यू पर से हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालनी होगी, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी यानी B एवरेज, और उसके लिए फॉर्मूला है P5 अपॉन पाई DL। जो हमारा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का फॉर्मूला है P5 अपॉन पाई DL। तो अब यहाँ पर P जो है वो नंबर ऑफ पोल जो जिसकी वैल्यू है 4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लक्स से। फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 8.73 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई। डी की वैल्यू जो हमारे डेटा में दी गई है वो है 21 इंटू 10⁻², और जो एल की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ कोर वो है 15 इंटू 10⁻²। तो इससे हमें बी एवरेज की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0.35 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो बी एवरेज जो है वो हमने फाइंड कर लिया है अभी। अब जो बी एवरेज है उससे हम BG60 की वैल्यू निकालेंगे, यानी BG60 इज इक्वल टू 1.36 इंटू बी एवरेज। अब 1.36 इंटू 0.35 बी एवरेज की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.476 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो मिलेगी, यानी BG60 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली।
अब BG60 की वैल्यू जो है उससे हम एयर गैप का MMF वो है निकालेंगे। अब एयर गैप का MMF इज इक्वल टू 8 लाख BG इंटू LG इंटू KG। KG जो है वो हम पहले तो 8 लाख BG की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0.47 इंटू 1.2 जो है वो हम KG की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, और LG जो है वो हमारे डेटा में है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इससे हमें एयर गैप जो है उसका MMF मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 228.48। तो ये हमें एयर गैप का MMF मिल गया। अब हमारे पास हमें पता है कि जो आयरन पार्ट्स का MMF है वो एयर गैप का MMF का 45% है। तो हम इससे जो है वो आयरन पार्ट्स का MMF भी निकाल सकते हैं, यानी ATI विच इज इक्वल टू 45% ऑफ ATG। सो 0.45 इंटू ATG विच इज 228.48। सो ATI विच इज इक्वल टू 102.82। तो यहाँ पर आयरन पार्ट्स का भी MMF मिल गया और ATG का। ये आयरन पार्ट्स का MMF यानी रोटर, स्टेटर कोर, स्टेटर टीथ और रोटर कोर सभी का हमें MMF मिल गया, और MMF जो है वो एयर गैप का भी मिल गया, यानी टोटल MMF जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तो अब टोटल MMF की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। सो टोटल MMF इज इक्वल टू एयर गैप MMF प्लस आयरन पार्ट MMF। So ATG which is 228 plus 4 plus 102.82 MMF for air gap. So total MMF is equal to 331.3. So 8060 जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न पर फेज जो हमने पहले बात की थी वो भी है, और टोटल MMF की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब हम जो है वो हमारा जो नो लोड करंट है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो नो लोड करंट मैग्नेटाइजिंग करंट विच इज इक्वल टू 0.427 इंटू P इंटू 8060 डिवाइडेड बाय KWS इंटू TPH। तो ये जो है वो नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट जो है उसका इक्वेशन है। यहाँ पर 0.427 एज इट इज़, नंबर ऑफ पोल जो है वो 4 इंटू 860 जो हमारे पास वैल्यू है वो 331.3, KWS जो है 0.955 और टर्न पर फेज जो है वो 224। तो अब ये सभी जो मल्टीप्लिकेशन करके हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 2.645। सो मैग्नेटाइजिंग करंट इज इक्वल टू 2.645 एम्पियर। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने जो रिमेनिंग पार्ट था हमारे नो लोड करंट फाइंड करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसके लिए जो MMF की वैल्यू जो है वो निकालनी होगी। उसके लिए जो हमें MMF की वैल्यू जो है उसमें जो कोर है, स्टेटर कोर और रोटर कोर, उन दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो आज हमने डिस्क्राइब किए, और हमने जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल भी देखा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो स्टेटर और रोटर जो है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू और अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वो हम देखेंगे। थैंक यू।